تاریخ تک جو ہیں ہم نے ایڈمیشنز اپنے ایف اے کے اور میٹرک کے بڑھائے تھے اپنے ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جو کہ گھر بیٹھے ہیں، جو کہ ریگولر ایجوکیشن جو ہے اسکولوں میں جا کر حاصل نہیں کر سکتے، جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ان کے پاس 5ویں یا 8ویں کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے کہ وہ آگے جو ہے میٹرک جو ہے وہ کر سکیں۔ لہٰذا ایسے بچوں کو وہ تعلیم دلوانے کے لیے جو کہ ان کو اس قابل بنا سکے کہ وہ اچھی جابز حاصل کر سکیں، اچھے طریقے سے اپنا کاروبار چلا سکیں یا اچھے طریقے سے اپنی جو ہے کسی اور یعنی کہ ایکٹیویٹی کو، زندگی کو گزار سکے، تو اس کے لیے جو ہے آپ کو میٹرک اور ایف اے کروانا ان بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ان بچوں کو میٹرک اور ایف اے نہیں کرواتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ ان کے اوپر بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو ہے آگے چل کر زندگی میں جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانیاں یہ بچے فیس کریں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کا فیصلہ جو ہے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرے گا، اور یہ آپ کا فیصلہ جو اس حوالے سے جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہوگا۔ لہٰذا آپ کائنڈلی علامہ اقبال یونیورسٹی سے جب میٹرک اور ایف اے کے جو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ان میں ایسے بچوں کو جو کہ آپ کے گلی محلوں میں رہتے ہیں، جو کہ الحمدللہ اللہ نے ان کو اچھا ذہن دیا ہوا ہے، بس ان کو ایک شعور نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، لیکن آپ کو تو معلوم ہے نا۔ تو لہٰذا آپ جو ہیں اپنا ایک فرض، اپنا ایک کردار ادا کریں اس حوالے سے، اور ان بچوں کو آپ موٹیویٹ کریں کہ وہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں داخلہ لیں۔ آپ کی فیملی میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے عزیز و اقربا میں ایسے بچے یقیناً ہوں گے، آپ کے ایسے کزنز، آپ کے بردرز اینڈ سسٹرز جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ 20 25 30 سال ہو گئی ہے، اور اب جو ہے وہ اسکول جانے سے ڈرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار اب ہم کیا کہیں جا کر جو ہے کوئی ایجوکیشن حاصل کریں۔ تو ایسے بچوں کو جو ہے آپ کائنڈلی علامہ اقبال یونیورسٹی کی طرف جو ہے ان کی ترغیب، ان کو راغب کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو علامہ اقبال یونیورسٹی کی جو میٹرک اور ایف اے کی جو فیس ہے وہ انتہائی کم ہے، تقریباً 3 سے 3.5 ہزار کے اندر جو ہے آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اور اس میں یونیورسٹی آپ کو کتابیں بھی گھر بھیجتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب آپ ایگزام دینا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے اپنے ہی اسکول میں، آپ کے اپنے ہی کالج میں ہوتا ہے، آپ کے گھر کے قریب ہی جو ہے کوئی نہ کوئی ایگزامینیشن سینٹر ہم لگاتے ہیں جہاں پر جا کر یہ بچے آسانی سے یہ پیپر دیتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی میٹرک ہوتی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، بی ایڈ کرتے ہیں، اور مختلف جو شعبے ہیں وہاں پر جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ صرف اور صرف جو ہے ایک کلچر ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہمارے بچے جو ہیں وہ کتابوں کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن قائم کر سکیں، وہ روزانہ کوئی 2 3 گھنٹے جو ہے اپنے کتابوں کو دینا سیکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو ایک ریئلائزیشن ہو جائے کہ جب اگر ہم نے علم آج حاصل نہیں کیا تو آگے چل کر جو ہے آگے آنے والی زندگی جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ بلکہ آج کل کے دور میں ہی اگر آپ لوگ جو اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ آپ کی نظر میں ناکام ہیں، جو کہ آپ کی نظر میں جو ہے وہ غربت میں ہیں، جو کہ آپ کی نظر میں بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ دستی اور مفلسی کا شکار ہیں، تو آپ ایک بہت بڑا فیکٹر ان کی لائف میں یہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ جس بچے کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زندگی میں کرنے کے قابل یقیناً ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی ہنر بھی سیکھتا ہے تو زیادہ اچھا سیکھتا ہے، وہ کوئی کاروبار بھی کرتا ہے تو زیادہ اچھا کرتا ہے، وہ اگر مارکیٹنگ یا سیلز کے شعبے میں بھی آتا ہے وہ تو زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شعور اس کا ڈیولپ کر دیا ہوتا ہے اس کے علم کے نتیجے میں، اس کی محنت کے نتیجے میں۔ تو لہٰذا آپ اپنے ارد گرد بھی اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ناکام ہیں، اگر مشکلات میں ہیں، تو آپ یہی دیکھیں گے کہ ان کی بڑی وجہ جو ہے ان کی ناکامی کی ان کا پراپر طریقے سے علم حاصل نہ کرنا ہے، ان کا کتابیں نہ پڑھنا ہے، ان کا میٹرک، ایف اے یا بی اے جو ہے نہ کرنا جو ہے ان کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اس حال میں رہنے کی۔ تو لہٰذا آپ ان بچوں کو جو ہے آپ خصوصی طور پر ترغیب دیجیے۔ ہمارے جتنے بھی ٹیوٹرز ہیں، ہمارے جتنے بھی ایگزام پرسنلز ہیں، ہمارے ورک شاپ کوآرڈینیٹرز ہیں، جتنے بھی ریسورس پرسنز ہیں، ان کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ ایسے بچوں کو جو ہے خصوصی طور پر جو ہے علامہ اقبال یونیورسٹی کی طرف جو ہے وہ لے کر آئیں اور ان کے ایڈمیشنز کروائیں۔ اور اس کے علاوہ جناب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بی ایس کے، بی اے کے، بی ایڈ کے ایڈمیشن بھی چل رہے ہیں، بی ایس 1.5 کے اندر، اور بی ایڈ 1.5 اور بی ایڈ 2.5 اور بی ایڈ 4 ایئرس کے ایجوکیشن کے ایڈمیشن ہمارے چل رہے ہیں۔ اور بی ایس کے بہت سارے پروگرامز ہیں جس کے اندر اسلامیات ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے، اکنامکس ہے، جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز ہے، ماس کمیونیکیشن ہے، عربی ہے، اردو ہے، انگلش ہے۔ تو جناب یہ سارے جو زبردست ایسے پروگرامز جن کی کہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور اس میں جو اگر آپ علم حاصل کرتے تو آپ کا ایک آٹومیٹیکلی ایک مرتبہ اور ایک مقام جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے سوسائٹی کے لیے بنتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس حوالے سے جو ہے ہمارے یہ جتنے بھی ایڈمیشنز پروگرامز ہیں یہ بھی لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیے، اور ایسے بچے جو کہ گھر بیٹھے بی ایس کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ بی ایس کرنے میں جو ہے مدد دیجیے۔
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास जो हैं बड़े ज़बरदस्त हमारे जो हैं हो रहे हैं, 1 साल के, जो कि आपके सीवी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है 5 या 6 महीने के जो है कोर्सेज भी हमारे जो हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी जो हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर होते हैं। तो उस हवाले से भी आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से जो है रुजू कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट कोर्सेज जब आप करते हैं तो ये आपकी सीवी को स्ट्रांग बनाते हैं, आपकी नॉलेज को एक वसअत देते हैं, और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने प्रोफेशन के अंदर जो है परफॉर्म करते हैं। तो जनाब बीए के तो कोर्सेज जो है ना आप जानते हैं कि हो ही रहे हैं, और बीए का जो नया नाम है वो एसोसिएट डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास जो है बीए जनरल और बीए जो है ना कॉमर्स के अंदर जो है, बी कॉम के अंदर जो है वो दाखिले हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि दाखिला लेना चाहते हैं तो याद रखें जनाब के 15 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है। तो 15 अप्रैल जो है ना, और हमारे जो बच्चे कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास एनरोल्ड हैं, हमारे जितने भी ट्यूटर्स हैं, हमारे जितने भी एग्जाम पर्सनल्स हैं, हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं, उनको खास तौर पर जो है ताकीद की जाती है कि इन बच्चों को आप जो है ना वो जल्द अज जल्द जो है इनके नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इनका दाखिला जो है वो यकीनी बनवाएं। और जितने भी ये बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं, आजकल जितना भी एग्जाम इम्तिहानी अमला है वो इनसे रोजाना की बुनियाद पर पूछे कि भाई आपने एडमिशन करवा लिया या नहीं करवाया है। इनसे इनके चालान फॉर्म जो है वो जनरेट करवाएं, और इस बात को यकीनी बनाएं कि इन्होंने जो है नेक्स्ट जो है सेमेस्टर के अंदर एडमिशन ले लिया है। इस तरीके से जो है ये बच्चे जो है इनका वक्त ज़ाया नहीं होता है, और ये अपना जो टेन्यूर है, अपनी जो एजुकेशन है वो उसको ज़रा वक्त पर जो है मुकम्मल कर लेते हैं। और इनका साथ देना इन बच्चों का बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे चलकर जब ये बच्चे कामयाब होंगे लाइफ के अंदर, तो आप यकीन कीजिए कि आप लोगों को जो है अल्लाह ताला जो है इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा, और ये बच्चे भी आपको दुआएं देंगे। तो लिहाजा जो है ये काम जो है आपने खुसूसी तौर पर करना है। जितने भी हमारे जो एग्ज़ाम्स से वाबस्ता अफराद हैं कि जनाब ये बच्चे जब आपके पास आते हैं तो आप इनकी तवज्जो खास तौर पर इस जानिब दिलवाइए कि इन्होंने एडमिशन आगे लिया है या नहीं लिया है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इनका एडमिशन करवाएं, और इनको जो है खास तौर पर ये भी कहें कि ये अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, अहले मोहल्ला को, अजीज़ व अकारिब को, ऐसे बच्चों को जो कि आगे जिनको पढ़ना चाहिए उनको भी जो है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वो लेकर आएँ, उनकी भी एडमिशन का जो है ना एहतमाम करें। और उनके कवायफ जो है आप लोग अपने पास रखें, उनका डेटा जो है वो आप अपने पास महफूज करें। उन बच्चों के साथ आप खुद भी कॉन्टैक्ट करिए, और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी रीजन सेंटर मोरो के साथ भी जो है इनका जो है एक तारुफ करवाइए, और हमारे साथ इनको जो है मिलवाइए। तो ये खसूसी तौर पर जनाब ये ऐसे बच्चे याद रखिए, मैं ज़रा दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आज 14 तारीख है अप्रैल की, और मार्च की आज 14 तारीख है जनाब, और 20 मार्च तक जो है आप मैट्रिक और एफए में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो मैट्रिक और एफए में अगर आपने करना है बगैर 5वीं 8वीं के सर्टिफिकेट के करना है, डायरेक्ट अगर आपने मैट्रिक के अंदर दाखिला लेना है बगैर किसी यानी कि सिर्फ 3,000 3,500 की फीस के अंदर जो है अगर आपने जो है स्ट्रेट वे जो है ये सफ़र शुरू करना है, तो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके साथ है। और आप किसी भी वक्त जो है ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं, हमारे ऑफिस में तशरीफ ला सकते हैं, हमारे ट्यूटर से रब्ता कर सकते हैं। तकरीबन जितने भी स्कूल्स आपकी तहसीलों के अंदर है वहाँ पर हमारे ट्यूटर्स हैं वो मौजूद होते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपकी इस हवाले से ज़बरदस्त रहनुमाई कर सकते हैं। और एडमिशन बेटा आप ज़रूर लीजिए, जो मैट्रिक और एफए करना चाहते हैं वो ज़रूर एडमिशन लें। आप अपनी एज को नहीं देखें कि आप जो है 20 25 30 साल के हो गए या 40 साल के हो गए और आपको आगे एजुकेशन हासिल नहीं करनी चाहिए। यकीन कीजिए कि आप जिस उम्र में भी एजुकेशन शुरू करेंगे वहाँ पर आपको जो उसका फ़ायदा जो है अल्लाह ताला जो है 1-2 साल के बाद जो है वो यकीनन आपको नज़र आएगा कि वो जगह जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते होंगे, जहाँ पर मैट्रिक और एफए के लोगों की ज़रूरत होगी अप्लाई करने के लिए, वहाँ पर आप लोग ऑटोमेटिकली जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और आपको वहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने मैट्रिक और एफए नहीं किया हुआ होगा तो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपकी लाइफ में आती भी हैं तो आपको भी फ़ायदा जो उनसे नहीं उठा सकते। तो लिहाजा पेरेंट्स का खसूसी तौर पर जो है ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी बच्चियों को जो है, अपनी बेटियों को ख़ास तौर पर जो है आगे पढ़ाएं, उनकी एजुकेशन का ख़ास एहतमाम करें। और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से उनको जो है घर बैठे मैट्रिक करवाएं, बीए करवाएं, बीएस करवाएं, बीएड करवाएं, और जो है उनकी तालीम को बेहतर बनाएं ताकि जो भी वैकेंसीज अभी आएंगी या सरकारी या गैर सरकारी सतह पर जितनी भी वैकेंसीज आती है तो वहाँ पर आप अच्छे तरीके से जो है वो आप अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सफ़ी जी, पीर मोहम्मद साहब आपने हमें ज्वाइन किया और आप जो है हमें सराह रहे हैं, हमारी जो है इस एफर्ट को जो है आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। बस आपको भी यही इस्तदा है कि जनाब आप अपना फ़र्ज़ जो है बतौर ट्यूटर जो है वो अच्छे तरीके से दूसरे लोगों की तरह जो है अदा करें। और आप तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यानी कि जो है हमारा काम कर रहे हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का 7 के अंदर जो है आप लोगों को जो है वो बता रहे हैं। और ये जो है
मैट्रिक का जो है प्रोसेस बताएं, खान पूछ रहे हैं हमसे। तो जनाब मैट्रिक का प्रोसेस बहुत ही आसान है कि आप हमारी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है आ सकते हैं। वहां पर आप जो है सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर जो है वो दाखिला ले सकते हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर जो है डायरेक्ट मैट्रिक के अंदर दाखिला ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पढ़ना लिखना आता है तो बच्चियां जो है उनको आप उनके दाखिले भी जो है वो डायरेक्ट करवा सकते हैं। तो मैट्रिक का प्रोसेस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का जो है, जब आप हमारी वेबसाइट पर आते हैं और एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है आपके फ़ोन नंबर की बुनियाद पर जो है आपकी वहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाती है, और उसके बाद आपका जो फॉर्म जो होता है वो भी आगे भरना बड़ा बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर नहीं भी हो तो आप जो है देखें आपका जो ये इन्होंने पूछा है कि और सर नाइन्थ, तो जनाब मैट्रिक जो होता है वो नाइन्थ और टेंथ दोनों को मिलाकर होता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका कि मैट्रिक 1 साल का होता है, मैट्रिक 1 साल का नहीं होता है। मैट्रिक जो होता है उसकी डिग्री को आप कहते हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है ना। आप पहले 9th क्लास पास करते हैं और उसके बाद आप जो है मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास पास करते हैं। तो वहां पर जो है जब आप दाखिला लेंगे तो पहला आपका दाखिला जो है वो 9th क्लास के अंदर होगा, और उसके बाद जो है वो 2 सेमेस्टर आप यहाँ पर पास करेंगे तो फिर आपका दाखिला आगे जो है वो 10वीं क्लास के अंदर हो जाएगा। तो ये जो है ना यानी कि इस तरीके से आपका मैट्रिक के अंदर जो है ना वो डायरेक्ट जो है वो दाखिला होता है। तो अगर आप जो है हमारे फॉर्म्स लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स भी जो है हम लोग जो हैं वो अपने इस डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शो करते हैं। 03213139 मेरा नंबर है, आप इस पर जो है रब्ता कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अगर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपने मैट्रिक के जो है यूँ समझे के लिए दाखिले के लिए आप हमें अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह भेजते हैं तो हम आपका जो है मैट्रिक का दाखिला वहाँ पर करवा देंगे। टोटल फीस भाई जो आपने पूछा है खान साहब के, बताइए 9th और मैट्रिक की टोटल फीस। तो भाई टोटल फीस जो है एक सेमेस्टर की फीस जो है वो 3,000 रुपया है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद जब आप दूसरे सेमेस्टर में आते हैं तो वो फीस और कम हो जाती है, ठीक है ना। तो आप जो है तो वो फीस जो है आपकी तकरीबन 2200 या 2500 के करीब हो जाती है। तो यानी कि आपके सेकंड सेमेस्टर में आपकी जो फीस जो है ना और ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छा ये पूछ रहे हैं अली हैदर गारही साहब के बीएड डिग्री निकलवाने के लिए पास सर्टिफिकेट का। जनाब बीएड की डिग्री निकलवाने के लिए जो है आपके पास जितनी भी आपकी डिग्रीज जो है मैट्रिक से लेकर वो आखिरी डिग्री जो कि आपने बीएड की डिग्री करने के लिए आपको उसमें यूज़ किया था आपने, तो वो सारी डिग्रीज और उन सारे मार्कशीट का आपके पास होना लाजमी है। और वो सारी की सारी चीज़ें जो है जब आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा कर भेजते हैं, अपने चालान फॉर्म के साथ लगा कर भेजते हैं तो आपका काम ज़रा ज़्यादा आसानी के साथ हो जाता है, ठीक है। ठीक है जनाब, ये खान साहब आपने जो है अपना नंबर हमें भेजा है, हम आपके साथ जो है रब्ता करेंगे। और अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका एडमिशन जो है वो ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप पर भी जो है ना हम आपका एडमिशन आपको जो है ना भिजवा देंगे। और बस ये है कि जल्द अज जल्द जो है वो जैसे ही आपको वो मिले तो आप जो है अपना चालान फॉर्म भरवा कर जो अपना एडमिशन जो है उसको जो है कंफर्म करवाइएगा। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू जी। और ये खान साहब पूछ रहे हैं कि सर मैंने एडीएस कंप्लीट किया है सल्लू यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त जी, यानी कि एसोसिएट डिग्री आपने कंप्लीट की हुई है तो आप आगे जो है आप बीएस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बीएस जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप जो है 2.5 साल वाला बीएस जो है ना वो हमारे पास आप कर सकते हैं। और उसके दाखिले भी चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उसके दाखिले जो है उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल है, ठीक है ना। तो आप जो है उसमें भी आप दाखिला ले सकते हैं। क्या मैं बीएस कर सकता हूं? तो बिल्कुल जनाब, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि आप बीएस कर सकते हैं। जो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं बीएस के, उसमें इंग्लिश हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उर्दू हो गया, और यानी कि मास कम्युनिकेशन हो गया। तो ये ऐसे बीएस के प्रोग्राम्स हैं जो कि अगर आप करते हैं तो आप आगे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में दाखिला यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉब्स जो आती हैं हायर लेवल की उसके अंदर आप कर सकते हैं। और जो है जनाब यानी कि बहुत ज़्यादा आसानी आपकी जो है यानी कि लाइफ में जो है जब तक आप हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाएंगे आप जो है कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो लिहाजा बिल्कुल आप जो है बीएस कीजिए अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से। और अगर आप एक बीएस किसी और यूनिवर्सिटी से रेगुलर कर रहे हैं और एक बीएस अगर आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर कर लेते हैं तो वो भी आपका बीएस जो है ना वो काबिल कबूल होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उसके ऊपर भी जो है कोई आपके बीएस के ऊपर किसी किस्म का जो है वो यूं समझिए कि कदगन नहीं लगेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। तो कम वक्त के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। अच्छा बीएस के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनकी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की फीस जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है ना। तो उसका प्रोस्पेक्टस जो है आपने हमें अगर अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा है तो हम आपको भेज देंगे प्रोस्पेक्टस भी उसका। और उस प्रोस्पेक्टस को आप पढ़ लीजिएगा और जितने भी बीएस प्रोग्राम्स हैं उनकी डिटेल्स भी उनके अंदर मौजूद हैं और उनकी फी की डिटेल भी उसके अंदर मौजूद है।
अच्छा जी, ये अली हैदर साहब हमसे पूछ रहे हैं कि डिग्री कितने टाइम में मिल जाएगी। तो भाई डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी तो कहती है आपको 45 डेज के अंदर मिल जाएगी, और इंशाल्लाह अज़ीज़ अब यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन हैं वो काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। तो अल्लाह करेगा कि आपको जो है डिग्री मिल जाएगी, और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम भी इस हवाले से जो है अगर आप अपना केस जो है उसकी तफसीलात हमें भिजवा देंगे तो हम जो है आगे उनको मज़ीद उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे कि आपकी डिग्री जो है वो जल्द अज जल्द जो है आपके पास आ जाए। ठीक है। अली अदर साहब कह रहे हैं कि BS 1.5 की हुई है, अब एम होगी या एम फिल प्लीज। तो भाई BS 1.5 के ऊपर जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से जो है वो एम फिल नहीं होता है। आप जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से आप कोशिश कीजिए, शायद वहाँ से हो जाए। तो फिलहाल जो है BS 1.5 ईयर्स के ऊपर जो है वो M.Ed के लिए जो है ना, सॉरी एम फिल के लिए जो है ना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सर मेरा व्हाट्सएप पे प्रोस्पेक्टस लाजमी सेंड करना। हाँ भाई बिल्कुल सेंड करेंगे आपको आपका जो प्रोस्पेक्टस है। और इंशाल्लाह BS का कहा है आपने, तो BS का प्रोस्पेक्टस आपको जो है हम ऑनलाइन जो एजुकेशन के अंदर होता है वो आपको भेज देंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो थैंक यू सो नाइस ऑफ यू जी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्शन करके और आपके सवालात के जवाब देकर भी। तो लिहाजा होपफुली आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंचाएंगे। अपनी भाइयों को बहनों को मोटिवेट कीजिए, समझे ना। बहनें हमारी जो हैं, आप यकीन कीजिए कि अगर आपने उनको जो है तालीम नहीं दिलवाई तो आप यूं समझिए कि वही फिर जो है लंबी लंबी लाइनें, वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो बैतुल माल की खैरात सदका खैरात वाली ज़िंदगी जो है उनका मुकद्दर बनेगी आगे चलकर। तो अगर उनके पास इल्म होगा, शऊर होगा, आगे यानी कि अपना आप संभालना उनको आता होगा, अपनी फैमिली को संभालना आता होगा, तो हमारी ये बेटियां, हमारी ये बहनें जो हैं वो जहां भी जाएंगी अल्लाह ताला इनकी इज्जत में इजाफा करेगा। ठीक है ना। और ये वहां पर जो है अच्छी तरीके से जो है ना अपने खानदान को, अपनी फैमिली को जो है ना वो चला सकेंगी और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगी। पता नहीं कितने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, कितनी सारी जो है यूं समझे कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मुख्तलिफ जो है इदारे हैं जहाँ पर जो है ये बच्चियाँ जा सकती हैं, काम कर सकती हैं और अपनी खिदमत जो है, अगर इनके पास इल्म है तो, अगर इल्म है तो। ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं खान साहब के भाई और सर और कोई ऑनलाइन एक्टिविटी तो नहीं है ना। भाई कोई एक्टिविटी नहीं है और कोई भी ऑनलाइन नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है अपने क्रेडेंशियल्स के साथ जो है ऑनलाइन सिर्फ दाखिला लेना है और चालान फॉर्म डाउनलोड करना है। कोई भी सवाल से परेशानी हो तो मेरा नंबर जो है मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहां पर जो है हमसे रब्ता कीजिएगा। 032131398343 मेरा नंबर है, तो आप इस पर भी मुझसे रब्ता फरमा सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको जो है हम टाइम देंगे, आपके सवालात के जवाब जो है ना फ़ोन पर भी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो नाइस ऑफ यू भाई। अल्लाह ताला आप सबको जो अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ये बातें जो है हमें समझने की और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करे। आप यकीन रखिए कि जो नाकाम लोग हैं हमारे मुआशरे के अंदर और जो कामयाब लोग हैं, जो थोड़े बहुत भी कामयाब लोग हैं, जो थोड़ा बहुत भी अपनी फैमिली को ज़रा ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि उन दोनों के दरमियान जो एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा वो तालीम ही का फ़र्क है। एक तरफ जो है जिन लोगों ने तालीम हासिल की है वो कुछ ना कुछ अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की वो उसकी कीमत सारी ज़िंदगी चुकाते रहेंगे। लेकिन अगर किसी भी लम्हे वो अपनी तालीम को शुरू करना चाहते हैं तो वो जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के पास आ सकते हैं। हम आपकी किसी भी वक्त जो है तालीम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। बिल्कुल